नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बरनाला के गांव सेखा में अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर 2 महिलाओं की हत्या, एक व्यक्ति गंभीर घायल। जालंधर हाइट्स में मॉनिटर लिजर्ड गो के आने से लोगों में मचा हड़कंप, जंगलात विभाग ने पकड़कर वापस जंगल में छोड़ा। मां चामुंडा धाम हिमाचल प्रदेश में 14वें वार्षिक भंडारे हेतु राशन सामग्री के ट्रक हुए रवाना। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने दी हरी झंडी। और अब हलचल विस्तार से। बरनाला के गांव सेखा में एक घर में घुसकर अज्ञात लोगों ने 2 महिलाओं की हत्या कर दी और एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक राजदीप सिंह अपने ससुराल गांव सेखा में घर जमाई बनकर रह रहा था। गत रात्रि अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर सारे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उसकी सास हरबंस कौर और उसकी पत्नी परमजीत कौर का कत्ल कर दिया गया, जबकि राजदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल राजदीप को बरनाला के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये हत्या तेजधार हथियारों से की गई है। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ 6:30 ਵਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਪੀ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਸੂਰਜ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਗੇਟ ਫੁੱਟਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਕੁੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਦਾ ਭੰਨ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਿ ਨਾ? ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ? 2 ਦੇ ਲਗਭਗ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਉਹ ਚੰਡ ਬਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਡੱਡੀ ਸੀ। ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹ ਤੇ 2 ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਮੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਜਦੀਪ ਸੀ। ਰਾਜਦੀਪ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਈ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਜਮਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੂਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ? ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਘਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਆਸੇ ਪਾਸੇ? ਰਾਤ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੂੰ पता लगे कि कितने बजे की घटना होता जी? ना कोई पता नहीं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बरनाला पुलिस के डीएसपी सतबीर सिंह पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए। हत्यारे घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर भी अपने साथ ले गए। इस मौके पर डीएसपी सतबीर सिंह ने बताया कि आरोपियों द्वारा हत्या के बाद घर में डकैती की घटना को भी अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से घटना की जांच कर रही है और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ਤੇ ਹਰਵੰਸ ਕੌਰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਉਰਫ ਮਾਣੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂੜੇ ਕੇ ਕਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੜਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੈਫਰ। ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੋਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਰੂੜੇ ਕੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਜਮਾਈ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਦੇਖੇ ਜੀ? ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਭੈੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਐ ਵੱਡੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣਗੇ 5 ਸਾਲ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਮਾਈ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਕਿੱਲੇ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਚਾ ਵੀ 3 ਕਿੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਵੇਚਤੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲਵੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੇ ਜੋ ਮਰਡਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਇਹ ਮਰਡਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਢਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੇਤੀ ਨਿਕਲੇ। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। ਇਹ ਜੀ ਅੱਜ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ
ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਪਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸੇਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 70 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 35 ਸਾਲ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰੂੜੇ ਕੇ ਕਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬਤੌਰ ਜਵਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਕੱਲ੍ਹ ਹਮਲਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 7-8 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਮਾਂ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕੋਈ ਆਈ ਕੋਈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ DVR ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CCTVs ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, जल्दी मुलजिमान ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ काबू कर लिया जाएगा। जालंधर हाइट्स से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मॉनिटर लिजर्ड गो के आने से लोगों में हड़कंप मच गया। दरअसल स्थानीय लोग तो पहले इसे देखकर मगरमच्छ का बच्चा समझने लगे। इस दौरान उन्होंने तुरंत जंगलात विभाग को सूचना दी। वही घटना की सूचना मिलते ही जब जंगलात विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह मगरमच्छ का बच्चा नहीं, मॉनिटर लिजर्ड है। जंगलात विभाग ने बताया कि 1 महीने में करीब 10 से अधिक मॉनिटर लिजर्ड को पकड़कर जंगल में छोड़ा जा चुका है। जंगलात विभाग के रेंज अफसर जसवंत सिंह ने कहा कि मॉनिटर लिजर्ड गो धरती के नीचे ही रहती हैं, लेकिन इस समय बरसातें और बाढ़ के कारण ये जीव धरती से बाहर आने शुरू हो चुके हैं। गांव से निकलकर शहर की तरफ इन्होंने अपना रुख किया हुआ है। सावन माह के उपलक्ष्य में मां चामुंडा देवी धाम हिमाचल प्रदेश में मां का पावन मेला 17 अगस्त से 23 अगस्त तक मनाया जा रहा है। इसी संबंध में ह्यूमन राइट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन शशि शर्मा की ओर से करवाए जा रहे 14वें विशाल भगवती जागरण एवं भंडारे के उपलक्ष्य में राशन सामग्री के ट्रक रवाना किए गए, जिन्हें दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज ने विशेष रूप से उपस्थित होकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर चेयरमैन शशि शर्मा ने बताया कि पिछले 14 वर्षों से वे मां चामुंडा धाम में 7 दिनों तक विशाल भंडारा लगाते आ रहे हैं और मां भगवती का जागरण करवाते आ रहे हैं। इसी संबंध में विशाल भंडारे हेतु राशन सामग्री के ट्रक रवाना किए गए। इस अवसर पर भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के प्रधान विपिन सब्रवाल, मनोज नन्ना सहित सभी सदस्यगण मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतिंदर की रिपोर्ट। जयकारा मां शेरां दा बोल साचे दरबार की जय। मैं शशि शर्मा, मां शेरां वाली दा भगत, मां दा बच्चा। असी पिछले 14 साल तो चामुंडा जी के दरबार दे विच जागरण कराईदा और लंगर लगाईदा। पहले नराते तो लैके आखिरी नराते तक देसी घ्यो का लंगर 56 भोग रोज़ असी लगाने उत्थे। अज 16 तरीक है, कल पहला नराता है। उन्हें साढ़े बाऊ जी पिता समान शीतल विज जी जिन्हों के आशीर्वाद नाल लंगर चल रहा है, उन्होंने झंडी दी है और असी निकल रहे हैं हुण चामुंडा जी लई। कल सवेरे जाके असी लंगर शुरू करांगे। 23 तरीक को मास्टर सलीम
ਜੋ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਗਾਉਣ 'ਚ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਚੰਚਲ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵਾਸੂ ਪਾਠਕ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਕਪਿਲ ਕੋਹਲੀ ਹੈ। 23 ਔਰ 24 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾਗਰਣ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਮਾਂ ਚਮੁੰਡਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਮੈਂ ਵਿਪਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਉਤਸਵ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਵਿਜੇ ਧਰਮਾ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਚਮੁੰਡਾ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਚਾਲੂ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ੀਤਲ ਬਾਊ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਟਰੱਕ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੀਵਨ ਕੱਟ ਕੇ ਟਰੱਕ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਆ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਣ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਨ ਵੀ। ਔਰ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਗਰਣ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਲੰਗਰ ਤੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕਿਰਪਾ ਵਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਕਰਨ ਔਰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਮਹਾਮਾਈ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨ और महामाई की सेवा करते रहन। जय श्री राम, जय वाल्मीकि। टर्बन ट्रैवल के नाम से मशहूर अमरजीत सिंह चावला अपनी धर्म पत्नी के साथ गुरु नगरी अमृतसर स्थित सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु घर में माथा टेककर सरबत के भले की अरदास की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए टर्बन ट्रैवल अमरजीत सिंह चावला ने बताया कि वह दिल्ली के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 2018 से उन्होंने अपनी यात्रा इस गाड़ी से शुरू की थी। सबसे पहले वे दिल्ली से लंदन गए थे। 30 देशों की 40,000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने 135 दिनों में पूरी की। उन्होंने कहा कि जब वह वापस आए तो गुरु नानक देव जी का 550वां वर्षीय शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नीदरलैंड में एक पत्रकार ने उन्हें चैलेंज किया कि क्या उन्होंने अपना सारा देश घूमा है। तब उन्हें लगा कि सबसे पहले उन्हें अपने देश में घूमना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपने देश के बारे में सर्च किया तो पता चला कि गुरु साहिब देश के 29 राज्यों में से 27 राज्यों में गए थे, जिसके बाद उन्हें मकसद मिल गया और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ 40,000 किलोमीटर की 8 महीने की यात्रा की। इसके अलावा वे श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर पाकिस्तान भी गए थे। उन्होंने कहा कि अब वे एक बड़ी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो आज तक किसी भी भारतीय ने नहीं की होगी, जिसमें वह 5,000 किलोमीटर की यात्रा करने जा रहे हैं, जिसमें उन्हें 1000 से अधिक दिनों का समय लगेगा और वह 200 से अधिक देशों की यात्रा करेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। नाम मेरा अमरजीत सिंह है, लोग मैनू टर्बन ट्रैवलर के नाते जानते हैं। दिल्ली का मैं रहने वाला हाँ, सहुरे मेरे अंबरसर ने। 200 कंट्रियां की यात्रा कर रहे हैं जी कि 5 लाख किलोमीटर की हैगी, जिन्होंने पूरा करें तकरीबन 1000 दिन लगणगे, यानी कि 2.5 ਤੋਂ पौने 3 साल। सर मन च किवें आउंदा कि देश की यात्रा करिए? मन च देखो जी, कुछ चीज़ां तुहाडे ना इत्थे लिखियां मत्थे ते लिखियां होंदियां ने, गुरु साहब तुहाडे तो आप करांदे ने ते गुरु साहब की मेहर है, बख्शिश है, उन्होंने सेहत बख्शी है, हौसला बख्शा है, हिम्मत बख्शी है, तो वो आप ही कराई जा रहे हैं। तो जो गुरु साहब आ गए ने कि मानस की जात सब के पहचानबो कि इंसान एक बराबर है, सारे किसी भी कोई फर्क नहीं है, भेदभाव नहीं है। असी उन्होंने ही जानने वास्ते ਵੱਖ-ਵੱਖ मुल्कों जाके उत्थे दे लोगों को मिल के समझना चाहते हैं कि जो गुरु साहब ने आख्या है वो बिल्कुल सच सीगा, ते उहदे बारे में लोगों को मिल के असी उत्थे दे जिहड़े एक्सपीरियंसिस ने वो लेना चाहते हैं। वीज़ा ते परमिशन बहुत मुश्किल होंदी है, खास तौर पर पंजाब के सारे दर्शकों को मैं दसना चाहांगा कि मैं कंसलटेंट भी हैगा, रोड कंसलटेंट जिहड़ा इंटरनेशनल जिहड़े ट्रैवल करना चाहते हैं उन्होंने कंसलटेंसी भी देना है। मैनूं घੱਟ ਤੋਂ घੱਟ 20-25 फोन रोज़ आते हैं कि बई असी जाना है। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ कहना चाहांगा कि यह इन्ना सौखा नहीं है
ਗੱਡੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਖਾਲੀ ਬੈਂਕਾਕ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਸ਼ੁਬਈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਗਾਲਤੇ ਨਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ 2-4 ਕੰਟਰੀ, ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਲकुल नहीं बनेगी। तो इस करके जाना है तो उससे सीरियस प्रिपरेशन चाहिए है, जिससे 5 ਤੋਂ 6 महीने लगेंगे। प्रसिद्ध उद्योगपति एवं डिलाइट कास्टिंग एंड स्टेफ फोल्डिंग के मालिक योगेश शर्मा की न्यू कैलाश नगर स्थित निवास स्थान में गौ सेवा मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद महाराज जी का पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रसिद्ध भजन गायिका गुंजन ने अपने भजनों के माध्यम से सभी को झूमने पर विवश कर दिया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने उपस्थित भक्तों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि गौ माता की सेवा के लिए हम सब आगे आएं और भोजन बनाते समय पहली रोटी गौ माता के लिए निकालें। अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बताएं। इस अवसर पर शर्मा परिवार की ओर से स्वामी कृष्णानंद जी महाराज को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान प्रसाद रूपी लंगर सभी भक्तों में वितरित किया गया। इस अवसर पर योगेश शर्मा, शैली शर्मा, शुभम शर्मा, रिया शर्मा, संजीव कालिया, रितु कालिया, अनमोल कालिया, अशोक शर्मा, रंजीता शर्मा, केवल शर्मा और कुंवर शर्मा सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। हमारे शर्मा परिवार का सौभाग्य है कि आज सभी सब वर्कर नाम संकीर्तन के सभी वर्कर के द्वारा हमारी बेटी गुजर के गोपू गोपाल महाराज जी, हेमंतलाल जी के पावन सानिध्य में आप हम सब आचार्य समझाए हैं। ये परिवार से हमारा बहुत बड़ा प्यार का नाता है, क्योंकि हमारे अशोक शर्मा जी और ये सभी परिवार है, हमारा अपना परिवार है। और संयोग से ये त्रिदेवियाँ आपस में बहने बहने हैं, इसलिए द स्मार्ट इंटरनेशनल स्कूल में देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें प्रधानाचार्य ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर इस दिन की बधाई दी। इस दौरान बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किया, जिसमें बच्चों ने आज़ादी के जश्न में गीत, नृत्य और कविताएं पेश की, जिसका लुत्फ स्कूल के स्टाफ और माता पिता ने लिया। अंत में राष्ट्रीय गान के साथ इस समारोह को समाप्त किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि
घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन विनोद बांसल ने अपने माता पिता की याद में 14 ज़रूरतमंद लोगों को ट्राईसाइकिल दिए। इस संबंधी जानकारी देते हुए विनोद बांसल ने कहा कि वे आज जो कुछ भी हैं अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही हैं और उनकी कृपा से ही तरक्की की राह पर हैं। उन्होंने बताया कि आगे भी वे किसी न किसी तरह से अपने माता पिता की याद को समर्पित ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते रहेंगे। मोगा से हलचल के लिए निशी मनचंदा की रिपोर्ट। मकसद कोई नहीं जी, अपने माता पिता ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਐਂਡ ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉਹ ਭਰੀ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਕਲ ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ? ਅੱਜ 14 ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ मौका हो फिर। सावन माह के पावन उपलक्ष्य में शिवपुरी धाम किशनपुरा में महारुद्राभिषेक का आयोजन रुद्र सेना संगठन के संचालक दयाल वर्मा की ओर से किया गया। इस अवसर पर समाज सेवक सुदेश विज व उनके बेटे पीयूष विज ने विशेष रूप से शिरकत की। इस संबंध में जानकारी देते हुए दयाल वर्मा ने कहा कि हिंदू शास्त्रों में किए जाने वाला रुद्राभिषेक एक प्राचीन सनातनी धर्म अनुष्ठान है। रुद्र शब्द भगवान शिव के तांडव रूप को दर्शाता है और पूजा उनकी की गई साधना को। इस अनुष्ठान को करने से उपासक को आंतरिक शांति और तृप्ति प्राप्त होती है। इस अनुष्ठान में भगवान शिव के रौद्र रूप की पूजा की जाती है जो कि सभी बुरी शक्तियों और बुरी ऊर्जा का सर्वनाश करती हैं। इस मौके पर सुदेश विज ने कहा कि कई पुराने शास्त्रों में लिखित है कि रुद्राभिषेक अनुष्ठान ग्रहों के हानिकारक दोष का निवारण करता है। इस मौके पर अमित वर्मा, सुनील कुमार, केतन, मोहित शर्मा, करण गंडोत्रा, शेखर आनंद, दिनेश कुमार, सुरेंद्र बावा, कुणाल शर्मा, आशु पंडित, दिनेश पंडित, सोनू यादव, सुरेश कुमार, सनी, प्रदीप कुमार, सतीश कुमार, रिंकू, विकास खन्ना, विक्की ढल, राजू वालिया, पंकज जुल्का और राहुल सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। ओम नमः शिवाय। रुद्र सेना संगठन वालों सावन मास ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ रुद्र अभिषेक करवाया शिव जी ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਗਲਮय ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਗਤਜਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ परमात्मा महादेव जी सारे उत्ते अपनी कृपा बनाए रखन। रुद्र सेना वालों इत्थे शिवपुर दे विच जलंधर दे विच महा रुद्र अभिषेक करवाया गया जी। इसके मेन संस्थापक दयाल वर्मा जी, टिंकू वर्मा जी, अमित वर्मा जी, संदीप वर्मा जी, करण गडोत्रा जी, शेखर आनंद जी, सुनील वर्मा जी, केतन जी वालों बड़े ही विधि पूर्वक इत्थे महारुद्र अभिषेक करवाया गया जी। तो यही रिक्वेस्ट है कि सारे कि रुद्र महादेव जी का सब ते आशीर्वाद बनाया रखे और सब कुछ मंगलमय हो। शिव मंदिर भोलेनाथ भगवान किशनपुरा रुद्र अभिषेक का आयोजन किया गया, रुद्र सेना वालों किया गया और जिथे सारे भगतां ने
बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिता और बाद उपरंत ਉਹਦੇ आरती भंडारा किया गया। बहुत ही उत्साह के नाल भगवान भोलेनाथ तो आशीर्वाद प्राप्त किए, खुशियाँ प्राप्त कीतियाँ, भगवान का गुणगान किया सब ने। और असी तो यही चाहांगे साडी आने वाली पीढ़ी भी इस तरह ही जिस तरह असी अपने बच्चों अपने परिवारों नाल लैके आए हैं, क्यों परिवार भी साडे यही परंपरा जो साडे ऋषि मुनिया ने, साडे माता पिता ने, साडे बजुर्गों ने सानू सिखाई है। यही परंपरा भगवान भोलेनाथ की भक्ति को हमेशा करते रहिए और उस तो कल्याण अपना प्राप्त करते रहिए। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल मांडे, बिनी सावरिया, चंद्र कन्हैया, डोली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेवानंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है। इसी के तहत कैलाश नगर स्थित जगदीश अरोड़ा के निवास स्थान से प्रभात फेरी निकाली गई, जो कि इलाके की परिक्रमा कर वापस जगदीश अरोड़ा के निवास स्थान पर आकर आरती के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर पारिवारिक सदस्यों ने पुष्प वर्षा कर प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया और अंत में प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट।
सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित श्री सालासर धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें भजन पार्टियों ने बालाजी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्र मुक्त किया। इस अवसर पर बालाजी के असंख्य भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। माता वैष्णो देवी और ऐसे ही माँ तिरुपति माता की महिमा है। निरंतर वासियों का आप एक बहुत महान तीर्थ के वासी आपको अपने सौभाग्यवान करते हैं। माँ भक्ति जगदम्बा में आप सबको बता रखा है। अनंत भगवान श्री राम की अनंत कृपा है सभी की ओर। दुर्गम जिनकी कृपा से दुर्गम के दुर्गम कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हनुमान जी किससे प्रसन्न होते हैं? प्रभु चरित्र सुनने को सिया राम लखन सीता। हनुमान जी को प्रसन्न करना हो तो क्या करें? भगवान के नाम का गान करें। नाम की जितनी बड़ी महिमा है वो स्वामी कहते हैं, सिमर पवन सुत पावन अपने बस कर रखे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान राम को हनुमान जी ने राम नाम गा करके अपने बस में कर रखा है। ऐसे ही अनंत राधा जी की अनंत महिमा हमारे महापुरुषों ने गाई है। जीवन में कितना भी बड़े से बड़ा संकट, सबसे बड़ा संकट क्या है? क्या हनुमंत विकृति प्रभु सोई जब तब सुख अब हमको ही हनुमान विष्णु पर बता रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पद कारण मिला, हमारा प्रिय हमारे से शुभ हो गया, संसार में नहीं रहा, कोई हमारे धर्म हमारे हानि नहीं, किसी ने हमारा अपमान कर दिया है। ये सब हम संकट मानते हैं, पर महापुरुषों को हमारा असली रहस्य पर सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में गौ सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है। इसी के तहत श्री पंचवटी धर्मशाला गौशाला कमेटी बस्ती गुचा जालंधर से प्रभात फेरी बड़ी ही धूमधाम से निकाली गई, जो कि इलाके की परिक्रमा कर वापस मंदिर परिसर में आकर आरती के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने पुष्प वर्षा कर प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया और अंत में प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। कभी कभी जीवन में ऐसे लोग प्रेरणा बन जाते हैं जो अपने काम से, अपनी करनी से एक नहीं लाखों लाखों जीवों को
जब अच्छी संस्था, अच्छे लोग आगे आते हैं तो चमत्कारी काम हो जाते हैं, असंभव भी संभव हो जाता है। पंचवटी गौशाला जलंधर की एक प्रेरणादायी गौशाला है, जहाँ दूसरों को प्रेरणा मिले कुछ अच्छा करने की, गौ सेवा करने की। वो हमारे पंचवटी गौशाला के सभी सेवक, श्री भक्ति मल्होत्रा जी, उनके साथ जितने भी जलंधर महानगर इस कमेटी के जितने भी गौ माता के सेवक हैं, हम गौ सेवा करके कोई आसान नहीं करते। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। जिसने अपनी माँ की सेवा नहीं करी है, माँ के उस दूध का ऋण नहीं उतारा है, तो उसको कृतघ्न कहा जाता है। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में गौ सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम दोपहर 4 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक सामूहिक सुंदरकांड के पाठ किए गए, जिसके पश्चात सायं 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक श्री हरि नाम संकीर्तन एवं संत समाज द्वारा सत्संग किया गया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी ने अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। आज माता मक्खन को मथ रही है और मथते हुए देख करके उधर मथानी चला रही है और इधर उसी मटकी से निकाल करके भगवान खा रहे हैं। माता कहती है, लाला ऐसो तू कैसे करे छोटो सो बालक। भगवान कृष्ण कहते हैं कि माता ये तो मैं आपको लीला दिखा रहा हूं, आप देखो और क्या क्या मैं दिखाऊंगा। माता कहती है यदि पूरा मक्खन को जूठा कर दे लाला, तो जो मैं पूजा पाठ आरती के लिए घी इकट्ठा करती हूँ वह सब दूषित हो जाएगा। लाला काहे को माने, स्वयं खावे और अपने सखा को खिलावे और इतना बस सीमित
नहीं, जब एक छोटी सी टोली राम टोली श्याम टोली बना करके चले, जिस रास्ते से गुजरे सुबह जहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ हर एक घरों में मथानी से मंथन होता हुआ देखे, सीधा का सीधा धावा बोल दे उन घरों में और जाकर के मक्खन को निकाल कर ले आए। सर्वहितकारी केशव विद्या निकेतन जालंधर में स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई एवं जन गण मन गाया गया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित के साथ कार्यक्रम का आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के छात्रों ने अपनी प्रस्तुति पेश की। सीनियर विंग छात्रों ने भांगड़ा एवं गिद्धा सहित रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। प्राइमरी विंग के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी कविता एवं देशभक्ति के गीतों पर नृत्य पेश किया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि राजेंद्र ने छात्रों को स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताया और बच्चों में देशभक्ति की भावना को जागृत किया। अंत में बच्चों को हलवा वितरित किया गया। इस अवसर पर प्रांत के संगठन मंत्री राजेंद्र, ज्वाइंट मैनेजर मनीष, वित्त सचिव विजय ठाकुर, करण अखिलेश्वर, रविंद्र, नरेंद्र शर्मा, एग्जीक्यूटिव मेंबर दिनेश परमार, राजेश गुलाटी, साहिल भंडारी, प्रधानाचार्य अरविंद बैंस और अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मैं प्रिंसिपल अरविंद बैंस, सर्वहितकारी केशव विद्या निकेतन जालंधर। मैं सबसे पहले 15 अगस्त की आज़ादी के देश पर सभी शहरवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं बता देता हूँ। आज जो हमारे स्कूल में 15 अगस्त का जो प्रोग्राम था बहुत धूमधाम से मनाया गया। काफ़ी दिनों से बच्चे और अध्यापक जो तैयारी करवा रहे थे और आज बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बच्चों ने जहाँ सदाचार प्रोग्राम पेश किया, वहाँ बच्चों ने आज़ादी के दिवस पर कविताएं और रंग प्रोग्राम पेश किया। मैं एक बार द्वारा सारे भारतवासियों को, नगरवासियों को, शहरवासियों को इस शुभ दिहाड़े पर शुभकामनाएं देता हूँ। श्री सत्यनारायण मंदिर नजदीक एसटी कॉलेज जालंधर में तीज का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मंदिर की महिला संकीर्तन मंडली की ओर से कीर्तन भी किया गया और खीर और मालपूड़े का लंगर भी लगाया गया। इस मौके पर पूनम आनंद, सुमन पासी, अनु गुप्ता, विजय आनंद, नीरू आनंद, वंदना मेहता, प्रवीण बांसल, नीरू शर्मा, आकांक्षा अग्रवाल और ममता सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, जिसके चलते
सबसे पहला त्योहार रक्षाबंधन का आ रहा है, तो वहीं रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजारों में राखी की दुकानें सजनी शुरू हो गई हैं। इसी के चलते जालंधर के अटारी बाजार में स्थित पॉल ट्रेडर्स पर पूजा राखी की धूम मची हुई है। महिलाएं बढ़ चढ़कर पूजा राखी की खरीदारी कर रही हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए अमित गुंबर और आंचल गुंबर ने बताया कि इस बार बच्चों के लिए विशेष प्रकार की राखियां मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसमें लाइटिंग, टेडी बियर्स और बच्चों के मनपसंद कार्टून किरदारों की राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। तो वहीं सावन माह को ध्यान में रखते हुए भगवान शिव, राधा कृष्ण, एक ओंकार सहित भगवान के कई मनमोहक स्वरूपों और चंदन की राखियां भी लोगों को खूब भा रही हैं। इस अवसर पर सतपाल गुंबर, सुनीता गुंबर भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी पूजा राखी सारे भैनों भरावां लई रखड़ी लैके आई है। तो इस साल हर साल की तरह नवीं वैरायटियां रुद्राक्ष राखी सावन नूं देखते हुए भोले शंकर की रखड़ी, खाटू श्याम राखी इस साल स्पैशल आई है। इहदे विच खाटू श्याम की रखड़ी, जय श्री श्याम, हर तरह की रखड़ी नवे तरीके दी जो रखड़ियां लियाउण की कोशिश की है। इस साल साडी नूं उम्मीद है कि रखड़ी बहुत वधिया जाएगी, क्योंकि रखड़ी के सावन के महीने विच होण नाल बहुत वधिया इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। सारे व्यापारी भी इस करके खुश हैगे ने। जय श्री राम। जय हर साल की तरह इस साल भी आप पूजा राखी के नवी वैरायटियां लैके आए हैं। हर साल जिदा उम्मीद होती है कि रखड़ी बहुत वधिया जाएगी, क्योंकि त्यौहार सारे रखड़ी तो ही शुरू होते हैं। रखड़ी तो बाद दिवाली आ जाती है, तो तरह तरह के त्यौहार शुरू हो जाते हैं। इस तरह रखड़ी तो ही सारे बिजनेस शुरुआत होती है। तो उम्मीद है हर साल की तरह इस साल भी रखड़ी वधिया जाएगी। व्यापारियों को बहुत उम्मीद हैगी रखड़ी तो उम्मीद है खरा रुकेगा। यार चहल पहल पूरी हैगी। यार स्टार्टिंग तो माहौल थोड़ा ठंडा हैगा सीगा, लेकिन हुण जिवें रखड़ी का माहौल शुरू हो गया तो रखड़ी नूं लैन सारे व्यापारी आ रहे हैं। बच्चों की बहुत आइटम हैगियां, बच्चों की हर साल नवी आइटम आप मंगाई दी है। कुछ चाइना की आइटम आ जांदियां, कुछ अपने इंडियन आइटम हैगियां। जिद्दां मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा दिता है, तो उम्मीद है हर साल जिवें नवीं चीज़ां इंडिया च बनदियां, वो नवी वैरायटी होर बन रही है। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर। बरनाला के गांव सेखा में अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर 2 महिलाओं की हत्या, एक व्यक्ति गंभीर घायल। जालंधर हाइट्स में मॉनिटर लिजर्ड गो के आने से लोगों में मचा हड़कंप, जंगलात विभाग ने पकड़कर वापस जंगल में छोड़ा। मां चामुंडा धाम हिमाचल प्रदेश में 14वें वार्षिक भंडारे हेतु राशन सामग्री के ट्रक हुए रवाना। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने दी हरी झंडी। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।